أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورۃ الکہف کا یہ 11واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس رکوع کی جملہ 21 آیتوں میں جن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 83 سے اور ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 101 پر، اللہ تعالیٰ نے اس مجموعے میں آیات کے ذوالقرنین کا تذکرہ فرمایا اور انہی کے ضمن میں یاجوج و ماجوج کا بھی تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ذوالقرنین کے بارے میں کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں رکھی جائے، بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کا تذکرہ کس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی جانب اشارہ کر دیا جائے۔ جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات مقرر گزر چکی ہے، سورت کے آغاز سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ الکہف خلاصہ کلام یہ ہے کہ مادے پر ایمان کے غلبے کو اجاگر کرتی ہے۔ مادہ یعنی مادہ کہتے ہیں
کہ ہر چیز جو ایگزسٹ ہے، جس کا وجود ہے، جو جس کا ادراک ہماری آنکھیں کرتی ہیں، جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، برتتے ہیں، انہی پہ ہم یقین رکھیں، اس کے ماورا کسی چیز کو تسلیم نہ کریں۔ یہ مادہ پرستی انسان کے لیے بہت جان لیوا ہے۔ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ان کے آگے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس کا اقتدار ہے، اس کی قدرت ہے، اور وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ اسباب کے بغیر وہ کام کر سکتا ہے۔ ہر اس دنیا میں جو واقعہ وجود میں آ رہا ہے، جو حادثہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی حکمت ہے، اس کا علم شامل ہے۔ یہ ایک نظام ہے کائنات کا جو ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن اس پہ ایمان رکھنا یہی ایمان بالغیب ہے، یہی یقین ہے۔ چنانچہ اصحاب الکہف جو نوجوانوں کا ایک مجموعہ تھا جن کی تحقیق گزر چکی ہے، زیادہ قریب قیاس یہ ہے کہ وہ 7 رہے ہوں گے، ان کا 300 سال تک سو جانا، بلکہ قمری مہینوں کے اعتبار سے 309 سال تک سو جانا، ہم اپنی ظاہری نگاہوں سے، اپنے ناقص علم سے تو اس کو مشکل ہی سے سمجھ پائیں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اس کی قدرت تھی، ایسا ہوا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ایسے ایمان والوں کے آپ ساتھ رہیں، صبح و شام جو اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، انہی کے ساتھ آپ رہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اور ان کے مقابلے میں جو لوگ مادہ پرست ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی آپ ان کی طرف التفات نہ برتیں، ایمان کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر آگے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک صاحب کے پاس ایمان تھا، ایک صاحب ایمان سے محروم۔ جو ایمان سے محروم تھے، بہت بڑے باپ کے مالک تھے، بڑی دولت تھی، لیکن نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے، نہ آخرت پر ایمان رکھتے، تو لازمی بات ہے اس کا نقصان ان کو بھگتنا پڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کے حکم سے ان کا باپ تباہ و تاراج ہو گیا، وہ ہاتھ ملتے رہ گئے، وہ کہتے رہ گئے کاش میں مشرک نہ ہوتا، کاش میں شرک نہ کیا ہوتا، باپ کو میں خدا نہ سمجھا ہوتا، یہ افسوس کرتے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو، جوابدہی کا احساس رکھو۔ اور پھر اسی تسلسل میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا وہ سفر، جس میں اس حقیقت پر اللہ تعالیٰ نے تینوں واقعات کے ذریعے نمایاں کر دیا کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کچھ اسباب کے تحت چلا رہا ہے جن کا ادراک اور جن کی پہنچ تمہاری ناقص عقل سے نہیں ہو سکتی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اعتراضات کیے اور اس پر جو واقعہ ہوا وہ تفصیل سے گزر چکا ہے، اور اس کے بعد سے پھر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ الگ الگ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ شریعت کے حامل تھے، آپ پر شریعت نازل ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرائض منصبی میں شریعت کی تبلیغ تھی، اور حضرت خضر وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک علم ملت دنی کے حامل تھے، اور اس علم کے مطابق حضرت خضر کو حکم تھا کہ وہ کچھ اعمال انجام دے۔ چنانچہ یہ جو تینوں واقعات گزرے، اس میں کشتی پر سوار ہونا اور کشتی کو عیبدار کر دینا، بستی میں پہنچنا تو ایک لڑکے کو ہلاک کر دینا، اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو بنا دینا، یہ تینوں واقعات کا، اور اس واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رویہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز، یہ انتہائی اہم پیغام کا حامل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے سیکھنے کے لیے ایک سفر کرتے ہیں، لمبا سفر، جیسے کہ میں آپ کی خدمت میں گزشتہ یہ رکھ چکا ہوں کہ 40 دن متواتر چلنا پڑا، اتنا لمبا سفر۔ اور اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میں اس بندے کو کہاں پاؤں، کیسے پاؤں جس بندے کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علامت بتلائی، یہ بھی نہیں کہا فلاں مقام پہ پہنچ جاؤ گے تو وہ بندہ مل جائے گا، کہا کہ دیکھو جہاں سمندروں کا سنگم ہے اور وہاں جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے وہیں کہیں تلاش کرنا۔
पूरा इम्तिहान जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया। और फिर हजरत खदिर मिले और हजरत खदिर के साथ सफर हुआ, और हजरत खदिर ने जब कश्ती में आग लगाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका एतराफ नहीं किया, उस पर बेचैनी का इजहार किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने गलत हरकत की, बेचारे मिस्कीन, और इनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, कश्ती है जिसके जरिए कमाते हैं, उसमें भी आपने आग लगा दिया। आगे बढ़े, लड़के का कत्ल हुआ, और जब कत्ल हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कदर सख्त अल्फाज में तनकीद की और कहा कि आपने गलत किया, गुनाह किया, नुकरा फरमाया। फिर उसके बाद से दीवार का वाकया हुआ, उसमें भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि आप पहले उजरत तय कर लेते। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत के पाबंद थे। मैं जो नुक्ता बताना चाह रहा हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत के पाबंद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीनों मौकों पर शरीयत का हुक्म याद दिलाया, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम है कि ये बजरिए वही इल्म आया, ये कोई इज्तिहादी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जाती फैसला नहीं है। बजरिए वही इल्म आया था कि ये खदिर ये इल्म मिल्लदुन्नी के हामिल है, हमने इनको कुछ अल्लमनाहु मिल्लदुन्ना इल्मा, हमने कुछ इल्म दे रखा। और आप सोचिए, वही से जो डिक्लेयर किया गया कि इस शख्स के पास एक खास इल्म है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनसे यह देखा कि शरीयत मूसवी के मुताबिक अमल नहीं हो रहा है तो एतराज किया। जिस नुक्ते को मैं नुमाया करना चाह रहा हूं वो ये कि आज अगर हम किसी भी बुजुर्ग के पास हो जो दावा करते हैं कि वो अल्लाह वाले बड़े मुकर्रब है, उनका मकाम है, वो मुर्शिद है और ये है और वो है, और शरीयत के खिलाफ अगर अमल कर रहे हो तो हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। दोनों में मैं फर्क बताना चाहता हूँ कि हजरत खजिर के सिलसिले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही आई कि ये इल्म मिल्लदुन्नी का हामिल है और इनसे जाओ सीखो, और सफर किया 40 दिन का। अल्लाह के एक रसूल हैं और सफर कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, इसके बावजूद जब देखा शरीयत से मेल नहीं खा रहा उनका काम तो एतराज किया। अब शरीयत याद दिलाई, शरीयत की दुआई दी। और हम अगर किसी के पास जाएं तो लाजमी बात है वो साहब के सिलसिले में ना मुझ पे वही आई है ना आप पे वही आई है कि अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। ये तो मेरा और आपका एक अंदाजा है ना, गेस किया हम भी अल्लाह वाले हैं, उनके पास गए हुए और उनके पास उनकी सोहबत में, और अगर वो गैर शरई हरकत अंजाम दे रहे तो हम और आप उसको कैसे गवारा कर सकते हैं। बाइकआउट करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। ये है किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब जो शऊर देती है कि वो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है। अगर वो शरीयत के खिलाफ चल रहे हैं, अगर वो हराम कर रहे हैं, हराम बैयिन, जैसे हराम बैयिन था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ये वही नाजिल फरमा दी थी कि मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तला नफ्सन बिग़ैरि नफ्स और फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तला अन्नास जमीआ। हमने बनी इसराइल में भी ये हुक्म दे दिया था कि जो किसी को कत्ल करता है एक शख्स को तो गोया सारे इंसानों का वो कातिल है, सारे इंसानों का वो कातिल है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी शरीयत की रोशनी में देखा गलत है, एतराज किया। अब जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत महफूज शक्ल में मौजूद है और आप किसी के सिलसिले में ये समझते हैं कि इनका बड़ा मकाम है और ये है और वो है, और उनके पास गए हुए और आप देखते हैं कि वो हराम बैयिन करते हैं, तो आपको गवारा नहीं करना चाहिए। और आखिरी दर्जे की बात यह है कि अगर आप इस पोजीशन में नहीं है, इस मौकिफ में नहीं है कि हाथ से रोके गुनाह को या जबान से रोके, तो आखिरी दर्जे की बात यह है कि आप लाहौल और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए उस मजलिस से निकल जाना चाहिए। आप लाहौल और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए उस मजलिस से बाइकआउट करना चाहिए। अगर उम्मत में ये शऊर पैदा हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह हजारों दुकानें बंद हो जाएंगी जो गैर शरई आजकल चल रही हैं, हजारों दुकानें बंद हो जाएंगी। लिहाजा ये शऊर किताबुल्लाह, अल्लाह ताला की किताब हमारे अंदर पैदा करती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आखिरकार जुदा हो रहे हैं और हजरत खजिर ने कहा भाई देखिए आपकी ड्यूटीज अलग है, आप भी अल्लाह की जानिब से मामूर, मेरी ड्यूटी अलग है, मैं भी अल्लाह ताला की जानिब से मामूर। देखिए जो चीजें आपको बज़ाहिर ऐसा महसूस हुआ गलत है, वो उन चीजों की हकीकत ये है कि कश्ती वो बादशाह रसद करने का अंदेशा था, मैं ऐतराज कर दिया, अब बादशाह रसद नहीं करेगा।
बच्चा वो बड़ा फितना बनने वाला था, माँ बाप के ईमान के लिए भी इम्तिहान बनने वाला था, लिहाजा बच्चे को मैंने खत्म कर दिया अल्लाह के हुक्म से, अपने से नहीं किया, अल्लाह के हुक्म से किया। और वो रो के दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला उनको सालेह औलाद देगा। और आप जानते हैं, मैंने एक रिवायत भी आपकी खिदमत में पेश की, अगरचे कि सनद के एतबार से उस दर्जे की नहीं है, लेकिन तफसीर की किताबों में है कि फिर जो दूसरे औलाद हुई उससे इतनी नेक औलाद हुई कि अल्लाह ताला ने उससे 7 नबियों का सिलसिला चलाया। और तीसरी बात यह कि दीवान यतीमों की, यतीम बड़े नेक, उनके वालिद बड़े सालेह, और ये गांव के लोग वो बड़े जालिम लालची, देखा नहीं उनको एक टाइम का खाना नहीं दिया, लिहाजा मैंने वो दीवार बना दी ताकि नेक माँ बाप की मीरास उनकी औलाद को पहुंच जाए। ये अल्लाह का हुक्म है। ये हज़रत खलील ने वजाहत कर दी। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, लाज़मी बात है, वापस मिस्र की जानिब आ गए और आपने तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया। बाद में फिर हिजरत हुई और हिजरत के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो वादी सैना में वफात पा गए, वादी तीह भी जिसको कहते हैं, और ये सिलसिला तारीख का फिर चलता रहा। इसी असना चुके यहूदियों ने 3 सवाल किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। पहला सवाल तो था यसअलूनका अनिर रूह, रूह के बारे में आपसे ये सवाल करते हैं। उसका जवाब सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया। और दूसरा सवाल उनका था कि अस्हाबुल कहफ कौन है, गार वाले कौन है, लिहाजा अल्लाह ताला ने अस्हाबुल कहफ का तज़किरा कर दिया। तीसरा सवाल उनका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैन, ये आपसे सवाल करते हैं ज़ुल क़रनैन के बारे में। ज़ुल क़रनैन, ज़िल क़रनैन या ज़ल क़रनैन, ये अरबी ग्रामर की वजह से अलग अलग पढ़ा जाता है, वरना ये एक ही चीज होगी। अरबी ग्रामर के एतबार से हालत रफा में अबू बकर, हालत नस्ब में अबा बकर और हालत जर में अबी बकर, ये 3 हालतें होती हैं, अलग अलग मौके पे पढ़ा जाता है। हम लोग अरबों में सुन लेते हैं और आने के बाद अपने बच्चे को भी अबा बकर पुकारने लगते हैं। अबा बकर नहीं, असलन अबू बकर है वो, लेकिन खास जुमले का एक कंस्ट्रक्शन होगा तो उस मौके पे वो अबा बकर बन सकता है। वो कंस्ट्रक्शन जब चेंज होता है, एक तीसरी कैफियत में जाता है, तो अबी बकर हो जाता है। इसी तरह ज़ुल क़रनैन, ज़ल क़रनैन, ज़िल क़रनैन, ये तीनों एक ही चीज होगी, ग्रामेटिकली ये तब्दीली होती है, बस इतना मैं बताना चाहता हूँ। चूंकि आन है इसीलिए यहाँ पे ज़िल क़रनैन आया है। ये सवाल करते हैं आपसे ए नबी, किसके बारे में? ज़ुल क़रनैन के बारे में। कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, ए नबी आप फरमा दीजिए, सअतलू अलैकुम, मैं उनके बारे में तिलावत कर दूंगा, ज़िक्रा थोड़ा सा तज़किरा, ज़िक्रन तनवीन के साथ आया है, इसके माने कुछ तज़किरा, पूरी इनकी तारीख नहीं बताई जाएगी। तुम्हारी हिदायत के लिए जितने अज्जा जरूरी है उतने अज्जा बताए जाएंगे। अब ये ज़ुल क़रनैन कौन है, इस सिलसिले में अगरचे के तारीख में बड़ा इख्तिलाफ रहा है और बड़े बड़े मुफस्सिरीन आप उठा के देखे, इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बड़ी मारकतुल आरा अरबी में तफसीर है, इन सब के पास मुतअद्दिद अक़वाल है, मुख्तलिफ नामों का तज़किरा किया गया, जिनमें से 3 नाम बहुत अहम है, ज्यादातर तफसीरों में पाए जाते हैं। एक है सिकंदर आज़म, जिसको आप अलेक्जेंडर कहते हैं, बहुत बड़ा बादशाह था वो, उसके बारे में कहा वो ज़ुल क़रनैन हो सकते हैं। नंबर 2 एक हिमियर के बादशाह थे, हिमियर यानी यूं समझ लीजिए यमन के एक बड़े बादशाह हुए, जिनके कौम तुबा थी, कौम तुबा का तज़किरा कुरान पाक में उनके बारे में कहा गया। लेकिन एक तीसरी राय ज्यादा करीने क़यास है। तीसरी राय क्या है? तीसरी राय यह है कि ईरान से एक शहंशाह उठे थे जिनका नाम साइरस है, और खोरस भी उनका तलफ़्फ़ुज़ किया गया, खुसरो भी उनका तलफ़्फ़ुज़ किया गया। ये बादशाह, इन पर ज्यादा ज़ुल क़रनैन होने का इंतबाह होता है, ज्यादा करीने क़यास है। क्यों? इस सिलसिले में मैं एक बात अर्ज़ कर दूं कि सबसे बेहतरीन तहकीक की है, तारीख में डूब कर और ईरान और अरब ये दोनों तारीखों का गहरा मुताला और अहले किताब और यहूदियों की तारीख का गहरा मुताला और
के पर्शियन लिटरेचर, ये सारी चीजों का गहरा मुताला करने के बाद और इसके साथ साथ यूरोप की जो तहकीकात हुई हैं, जो उन्होंने इन ममालिक पे आकर, अरब ममालिक में और ईरान में आकर उन्होंने जो तहकीकात की है, उस पर जो उन्होंने किताबें लिखी, उन सब का मुताला करने के बाद इंतहाई गहरी तहकीक की मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। चुनाचे मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद तकरीबन बड़े बड़े मुफस्सिरीन हिंदू पाक के सब उनकी तहकीक के आगे घुटने टेक दिए और उनकी बात को मान रहे हैं। बाद लोगों ने खुल के नाम लेकर एतराफ करके कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की तहकीक है, बाबों ने नाम नहीं लिया लेकिन खुलासा वही पूरा बयान कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद की तहकीक का मैं खुलासा बयान करता हूँ कि देखिए, अल्लाह ताला यहाँ जो जुल्करनैन का तज़किरा फरमा रहा है, एक तो उनका लक़ब जुल्करनैन है, और नुन अरबी में सिंह को कहते हैं, करनैन दो सिंह, ये ज़हन में रखिए, उनका लक़ब दो सिंह है, ये ज़हन में रखिए, आप आगे बढ़े। दूसरी बात, अल्लाह ताला उनका तज़किरा जो यहाँ कर रहा है, तो बहुत ही ईमान वाले नेक दिल बादशाह की हैसियत से, ऐसा हुक्मरान बड़ा आदिल था, इंसाफ पसंद था और बहुत नेक दिल था और अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाला था। ये तो पहली शर्त ये हुई कि वो बादशाह ईमान वाला होना चाहिए जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता हो। दूसरी शर्त ये कि अल्लाह ताला ने जुल्करनैन के जो कारनामों को बयान फरमाया, उसमें आप आगे देखेंगे तशरीह आएगी कि अवाम की बहुत मोहब्बत करने वाले, रियाया की फला महदूद के लिए बहुत काम करने वाले, पैसों से दिलचस्पी नहीं, दौलत से दिलचस्पी नहीं, जो आम तौर पर बादशाहों का कल्चर होता है, खजाने भरो अवाम को चूसो, इसके बिल्कुल खिलाफ खर्च करो, अवाम की फलाह सोचो, ये उनकी दूसरी सिफत। और तीसरी चीज ये कि उनका कुछ ना कुछ ताल्लुक अहले किताब से है, उनका कुछ ना कुछ ताल्लुक यहूदियों से है, इसीलिए यहूदियों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल भी किया, अगर यहूदियों से, अहले किताब से उनका कोई ताल्लुक नहीं तो यहूदी क्यों पूछते किसी तीसरी शख्सियत का तज़किरा। लिहाजा ये तीन चीजें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बयान की कि इनके ऊपर परखिया, इन पर जो बादशाह फिट आता है वो जुल्करनैन होगा। जिस बादशाह ने तीनों में से एक भी चीज अगर नहीं है तो उसको जुल्करनैन नहीं कहना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि सिकंदर आजम मोमिन था ही नहीं, वो तो आतिश परस्त था, वो तो आतिश परस्त था, काफिर था और बहुत खुली हुई तारीखी हकीकत है कि वो मुशरिक था। नंबर दो, बहुत बड़ा जालिम था, वो बहुत बड़ा जालिम था, इसमें कोई शक नहीं कि यहां से वहां तक उसने फतुहात की थी, लेकिन उसकी फतुहात में आदल नहीं था, उसकी फतुहात में अमन नहीं था। लिहाजा सिकंदर के सिलसिले में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने साफ लिख दिया, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि नादान है हमारे वो भाई जो सिकंदर आजम को जुल्करनैन समझते हैं। अब वो मैं नादान का लफ्ज बहुत एहतियात से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बेवकूफ का लफ्ज आपके सामने कहूँ तो बहुत बुरा महसूस होगा, लेकिन एक हद तक उसका तर्जुमा ये भी हो सकता है कि वो यूं कहे कि हम सफीहुन का लफ्ज इस्तेमाल किया, बेवकूफ है वो लोग जो सिकंदर आजम को जुल्करनैन समझते हैं, इतना उन्होंने सख्ती के साथ कह दिया। और इसके बाद से हिमयर के बादशाह, उसका आलम ये कि वो बड़ी महदूद उनकी सल्तनत थी और ईमान से भी वो महरूम थे, ना इस्लाम आया था, ना उनके पास अहले किताब का कोई दीन पहुंचा था। नंबर 3 ये कि बड़ी फतुहात भी नहीं थी, लिमिटेड किस्म के बादशाह थे। जबकि जुल्करनैन के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इनकी मुहिम्मत का आलम ये कि ये मशरिक में चले गए तो जहां मशरिक खत्म हुई वहां तक चलते चले गए, मगरिब में जब गए तो जहां मगरिब खत्म हुई वहां तक ये चलते चले गए, ईस्ट में भी वेस्ट में भी जो दोनों के सफर रहे तो तावक्ते के समंदर में आ जाए वो सफर करते रहे, फतुहात करते रहे। तो जमाने में दो जबरदस्त किस्म की सल्तनतें थी, अभी मैं उसकी तफसील बयान करूंगा वो किसकी थी और किस तरह से उन्होंने इख्तियार किया था। जो तीसरी राय है कि जुल्करनैन साइरस है, ये साइरस दरअसल ईरान के एक इलाके में पैदा हुए और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की पैदाइश से 600 साल पहले की बात है। और इनका आलम ये था कि जब ये पैदा हुए
तो इनके वालिद वफात पा चुके थे, लिहाजा इनके नाना को यह अंदेशा हुआ कि ऐसा ना हो मेरी हुकूमत मेरे बेटे से हटकर वहां से ये हुकूमत कहीं मेरी बेटी में और मेरे नवासे में ना शिफ्ट हो जाए। लिहाजा कुछ नीयत बुरी थी कत्ल वतल की, लेकिन एक ऐसा वजीर जो बहुत जान निछावर करता था वो इनको लेकर जंगल में भागा और उसके बाद वही ये निशोनुमा पाए। और निशोनुमा पाने के बाद से उन्होंने करीब के छोटे छोटे देहातों की ऐसी तरबियत की, ऐसी मोहब्बत पैदा की कि एक छोटी सी गोया कि स्टेट बन गई, स्टेट के अंदर एक स्टेट। जैसे आप जानते हैं कि पिछले जमाने में निजाम की हुकूमत थी, भोपाल की हुकूमत थी, इस तरह की एक हुकूमत उनकी बन गई। और फिर उसके बाद से वो अपने बलबूते पर, अपनी मेहनतों पर और अल्लाह ताला की मदद से वो तरक्की करते चले गए। और तरक्की करते करते उनकी हुकूमत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि वो पूरे ईरान के मालिक हुए। और उस जमाने में एक हुकूमत मीडिया थी, एक हुकूमत लीडिया कहलाती थी। जो शुमाल में थी वो मीडिया कहलाती थी, जो मुल्क शाम तक चली जाती थी। और जो जुनूब में थी, जो रशिया तक चली जाती थी, उसको लीडिया कहते थे। ये दोनों हुकूमतें धीरे धीरे इनके कंट्रोल में आ गई। ये बहुत नेक दिल थे और अंबियाए बनी इसराइल से बहुत मुतासिर। अंबियाए बनी इसराइल के हाथों इन्होंने ईमान कबूल किया था। इनको जुल्करनैन कहने की वजह यह है कि बनी इसराइल के ऊपर एक बहुत जबरदस्त हमला हुआ था, जिसका तज़किरा सूरह बनी इसराइल के शुरू में उन्होंने किया, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने बनी इसराइल से कह दिया था, वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फिल किताब के लतुफ़सिदुन्ना फिल अर्ज़ि मर्रतैन, 2 मरतबा तुम्हारे अंदर बिगाड़ पैदा होगा और तुम पर हमले होंगे और तुमको तबाह व ताराज कर दिया जाएगा। तो बनी इसराइल पहले हमले की वजह से चूर चूर हो चुके थे। इतना बड़ा बख्त नसर का हमला था कि 70,000 इसराइली शहीद किए गए थे, मार डाले गए थे। और एक रिवायत के मुताबिक 1,40,000 और एक रिवायत के मुताबिक 70,000 कैदी बना लिए गए थे। आप सोचिए उस जमाने की आबादियां ऐसी नहीं थी हैदराबाद जैसी छोटी सी आबादी जिसमें 2-4-8 लाख की आबादी रही होगी। इतनी बड़ी, इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी शहादत और इतनी बड़ी गिरफ्तारी, इतना बड़ा फिगर था उस जमाने के एतबार से। कहते हैं ईंट से ईंट बजा दी थी, खरों को रोड डाला था, वीरान कर दिया था। तो उस मौके पे बनी इसराइल उस जमाने के जो नबी थे हजरत दानियाल, और हजरत दानियाल के मुकाशफे ये आपको बाइबल में आज तक मौजूद मिलेंगे। वो उनके पास जमा हुए और उनसे कहा कि आप नबी हैं और आप दुआ नहीं करते कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दुआ करता हूँ। बहुत एहतमाम के साथ उन्होंने दुआएं की। जब दुआ की तो उनको ख्वाब में अल्लाह ताला ने दिखाया कि एक ऐसे सरबराह को अल्लाह ताला भेज रहा है बनी इसराइल की मदद से जिनके 2 सिंग होंगे, ख्वाब में 2 सिंग होंगे। सुबह उठकर उन्होंने लोगों को जमा किया और कहा कि बशारत आ गई और तुम्हारी मदद के लिए एक इंशाअल्लाह हुक्मरान ऐसे आएंगे जिनकी 2 बड़ी सल्तनतें होंगी, क्योंकि मुझे ख्वाब में 2 सिंगे दिखाई गई और मुझे ताबीर बतलाई गई कि सिंह के माने सल्तनत के है, एक एक सिंह के माने एक एक बड़ी सल्तनत के है। तो 2 सिंगों वाले से बाद 2 जबरदस्त किस्म की सल्तनतें हैं। अब सिंह के साथ आदमी कैसा लगता है, किसी इंसान के सर पर सिंह हो तो आप सोचिए जरा मंजर अजीब सा लगता है। मुझे भी यही तवज्जुह था कि अल्लाह ताला ने ख्वाब में कैसे दिखाया कि 2 सिंह वाले और 2 सिंह क्यों दिखाई गई। लेकिन अजीब और गरीब बात यह है कि जब मेरा सफर हुआ मिस्र, और मिस्र में एक अलेक्जेंडर एक शहर है आप जानते हैं, सिकंदरिया उसको कहते हैं। सिकंदरिया में ये बताया गया कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की मजार है। और फिर हमारे ड्राइवर साहब ले गए उनको दिखाने के लिए। तो थोड़ा सा जोग्राफिया आप यूं समझ लीजिए कि उसका जोग्राफिया वैसे ही था जैसे आप एबिट से नामपल्ली स्टेशन की तरफ आ रहे हो, वन वे रोड। ऐसे ही रोड पर कार आई और उसने हमको एक जगह उतारा, कहा आप जल्दी उतर जाइए क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की इजाजत नहीं है। मैं जिस मोड़ से दाखिल हुआ था उसी मोड़ पर ले जाके कार घूम के, रनवे है, घूम के मैं उसी मकाम पर लाके मैं कार पार्क करूंगा। आप इस गली में जाइए, अंदर मस्जिद है। गली में हम लोग गए, मस्जिद है। मुझे जहां तक याद पड़ता है शायद असर की नमाज थी, वो हमने अदा की और मौज़िन साहब से हमने कहा कि हज़रत लुकमान की खबर देखना चाहते हैं। तो उन्होंने एक जैसे नीचे नल वगैरह के ऊपर वो रखा होता है लोहे का, वो हटाया,
हटाने के बाद सीढ़ी थी, नीचे उतरे लोग, बहुत बड़ा हाल था इस मस्जिद के तकरीबन आधा हाथ, और उसमें एक मिट्टी की कच्ची कब्र थी। कहा यह हज़रत लुक़मान की कब्र है, वल्लाहु आलम। वहां रिवायत मशहूर है, चूंकि बहुत मशहूर है इसीलिए हमने जाके बहरहाल उसको देख लिया। तो वो जो रोड है, मेन रोड, उस रोड का नाम है शारे दानियाल। शारे दानियाल, इसी रोड से वहां पे बहुत बड़ा कदवा भी लगा हुआ है। जब हम पैदल उल्टा फिर वापस आए ताकि हम अपनी कार तक पहुंचे, तो जिस तरह आपने देखा होगा कि एविट्स पर एक गोल पार्क है जिसके बीचों बीच बेचारे नहरों खड़े रहते हैं गर्मी सर्दी में, वैसे ही एक पार्क है वहां पे, वैसे ही पार्क है गया नहीं। और उसके बीचों बीच एक अजीबोगरीब बात यह है कि संगमरमर का एक व्हाइट मुजस्मा है, बिल्कुल सफेद, और उस मुजस्मे को जब सामने से मैं देखा तो बहुत ही खूबसूरत दो सिंह है। और उसको जब मैं सिंह देखा तो वो फौरन एक तस्वुर आया कि ये खूबसूरत सिंह कैसे हो सकते हैं, ये आज समझ में आया। और उसके बाद जब मैं पीछे गया उस मुजस्मे के, तो मुजस्मा बनाने वाले ने उनको दो पर बनाए, पर पीछे की जानिब पर बनाए, और उन परों को ऊपर उठाया, और उठाकर जब सर के ऊपर लाए तो सिंह की तरह उन परों को फेर दिया। इंतहाई खूबसूरत हसीन। बस इतना मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो सिंह वालों का जो तस्वुर जहन में कायम होता है, वो मुजस्मा अगर आप देख ले तो वो तस्वुर जहन से निकल जाता है। किसका मुजस्मा है, क्यों हुकूमत ने वहां पर लगाया, उस रोड का नाम शारे दानियाल क्या है, इसकी कोई तहकीक नहीं हो सकी। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि जो खुदाई हुई थी, उन खुदाइयों में एक मुजस्मा निकला था, एक स्टैचू निकला था, और जिसके बारे में लिखा था तख्ती पर, प्लेट पर ये लिखा था कि ये ज़ुल्करनैन का ख्याली मुजस्मा है। ये बहुत पुराने जमाने की, इस्लाम से पहले की चीज थी जो खुदाई में निकली। लाजमी बात है, इस्लाम में तो मुजस्मा साजी को हराम करार दिया गया। अब हराम है, किसी का कोई तखय्युल आप नहीं कर सकते, मुजस्मा नहीं बना सकते। मुजस्मा है तो आपको तोड़ देना पड़ेगा, और फिर तोड़ने के बाद वो हशर भी हो सकता है जो तालिबान का हशर हुआ। बहरहाल इस्लाम मुजस्मा साजी की दावत नहीं देता, मुजस्मा साजी को हराम करार दिया। अब मैं अर्ज कर रहा था कि ज़ुल्करनैन दो सिंह वालों का एक अच्छा खूबसूरत भी तस्वुर हो सकता है कि उनको एक खूबसूरत टाइगर को अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखाया, और ये कहा कि दो की सल्तनतें हैं, ये तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। तो नबी दानियाल ने खुशखबरी दी बनी इसराइल को, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, अब अल्लाह ताला की जानिब से एक बंदा आने वाला है। ये थे साइरस जो निकले ईरान से, और ईरान से निकल के फिर आगे बढ़ते चले गए, और फिर उन्होंने फुतूहात की और बनी इसराइल की इतनी मदद की, बख्त नसर को शिकस्त दी, और जो ताबूत को लेकर उठा के चला गया था वो वापस लाए, बस्ती दोबारा बसा दी। लिहाजा आप समझ सकते हैं अहले किताब से बड़ा गहरा ताल्लुक हो गया, और अहले किताब और यहूदियों के खास मोहसिन हो गए। लिहाजा उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाने के लिए हमारी तारीख से कितना वाकिफ है, लाज़मी बात है, बहुत मख्फी शख्सियत थी और हर एक को मालूम नहीं था। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने कहा कि ज़ुल्करनैन कौन है, आप बतलाइए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पहली चीज इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द, हमने उनको जमीन पर तक़वियत दी, पांव उनका जमा दिया। तमकीन फिल अर्द आम तौर पर कुरान पाक में यह आया है हुकूमत अता करने के मानों में। आप तर्जुमा कर सकते हैं, इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द, हमने उनको हुकूमत इनायत की, यानी गैब से वो परवान चले। देखिए मौरूसी तौर पर उनको हुकूमत नहीं मिली थी, बल्कि बड़ी मेहनतों के बाद उनको हुकूमत मिली थी। व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और हमने उनको अता किया था हर किस्म का सोर्स, जितने भी सोर्स होते हैं, ज़राए होते हैं, वो सब कुछ अल्लाह ताला ने इनायत फरमाए थे। लिहाजा मुल्क अच्छा था, जहाँ पे की खेती जरखेजी थी, इसके अलावा सारी किस्म की सहूलतें उनको अल्लाह ताला ने फराहम कर दी। अब इसके बाद से फिर वो ईरान में बैठे रहे, अपनी हुकूमत पर इत्मीनान से रहे। फअतबा सबबा, तो उन्होंने उन रिसोर्स को, जो ज़राए थे, उनको इस्तेमाल भी किया। अतबा के माने लगे रहे, उसको इस्तेमाल किया, यूटिलाइज किया, चलते चलते यहाँ तक कि हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब अश-शम्स, यहाँ तक कि वो पहुंच गए वहां जहाँ के सूरज डूबता है। वजदहा तग़रुबु फी आइनिन हामिअतिन, तो देखा उन्होंने, पाया उन्होंने कि सूरज डूब रहा है एक सिरा से चश्मे की जानिब। यह आप जानते हैं कि
یہ بحیرہ اسود کہلاتا ہے عربی میں، کہ اگر آپ ایران کا میپ دیکھیں گے تو اوپر آپ دیکھیں گے بحیرہ کے معنی ہوتے ہیں بڑا سمندر نہیں، بلکہ وہ سمندر جس کی لمٹس اور اطراف میں زمین ہو. تو تقریباً اتنا سمندر ہے جتنا کہ آپ سمجھ لیجیے موجودہ دور کا انڈیا ہے. اور اس کو وہاں تک پہنچے تو اس کا عالم یہ کہ اس کا نام چونکہ بلیک سی ہے اسی لیے عینین حمیئتی فرمایا. اور یہ فرمایا کہ ووجد عندها قوما، وہاں پہ کچھ لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ بڑے فتنہ فساد اور سرکش قسم کے باغی، بہت جنگی ذوالقرنین سے نافرمان قسم کے مشرک، آتش پرست. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قلنا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اوپر ذوالقرنین آیا تھا یا ذوالقرنین آیا، میں گرامیٹیکل وجہ بتا چکا ہوں. قلنا یا ذوالقرنین، اما ان تعذب، آپ کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ ان کو سزا دیں، ختم کر دیں، بہت سرکش ہیں یہ لوگ. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. دونوں اختیارات ہیں. یہ مجرم ہیں، آپ چاہے سزا دیں، باقی ہیں ختم کر دیں، یا پھر آپ ان کو معاف کر دیں، حسن سلوک کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فتح مکہ کے موقع پہ سارے سرداران قریش کو قتل کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک فرمایا. تو دونوں کا اختیار ہے. آپ کو یہ حضرت ذوالقرنین سے کہا، تو ذوالقرنین کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يعود الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. رہا وہ شخص جو شرک کرتا رہے گا، سوف نعذبه، اس کو تو میں پنشمنٹ دوں گا، سزا دوں گا. پھر ثم يعود الى ربه، پھر وہ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائے گا موت کے بعد. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو اللہ تعالیٰ تو بہت سخت سزا دے گا، بہت سخت عذاب دے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، جو ایمان قبول کر لے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، گناہوں سے تائب ہو کر، نیک ہو کر صالح اعمال بجا لائے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے تو بس بہت ہی اچھا معاملہ ہے، اس کے لیے بہت اچھا اجر ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی. اور وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم اپنا سلسلہ، اپنا رویہ، اپنا معاملہ اس کے ساتھ بہت نرم کر دیں گے، اس کو سینے سے لگا لیں گے، معاف کر دیں گے، پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیں گے. پتہ چلا نہ صرف ایمان والے تھے بلکہ ایمان کی بنیادی پہ فیصلہ کرنے والے تھے. لہذا یہ انہوں نے وہاں پہ کیا. ثم اتبع سببا، پھر اور ذرائع اختیار کیے، یہاں تک کہ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اب آپ مشرق کی جانب چلے، چلتے چلتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی سمندر پہنچ گئے، سمندر کے کنارے. اب آگے جو ہے بس ایسا نظر آ رہا، یہیں سے سمندر نکل رہا. وجدها تطلع على قوم، تو دیکھا کہ سورج طلوع ہوتا ہے کچھ ایسے لوگوں پر، لم نجعل لهم من دونها سترا، جو بیچارے قبیلے قسم کے ہیں، قبائلی زندگی، کپڑے وپڑے نہیں ہے، پتے وتے لپیٹتے ہیں. لم نجعل، ہم نے نہیں بنایا، لہم، ان لوگوں کے لیے، من دونها سترا، کسی قسم کا کوئی سطر، کسی قسم کی کوئی حفاظت کا سامان. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، اور ہم نے ذوالقرنین کو ان کے سلسلے میں اہم اطلاع بھی دے دی کہ ان کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے. سببا، پھر ذوالقرنین نے اسباب کو اپنائے اور آگے بڑھے. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان کے درے میں پہنچے. وجد من دونہما قوما، تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو وادی تھی اس میں ایک ایسی قوم کو دیکھا، کچھ لوگوں کو، لا یکادون یفقهون قولا، جو بڑے سیدھے سادے تھے اور بات چیت بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، کم پڑھے لکھے قسم کے، بالکل دیہاتی زندگی، قبائلی زندگی کے عادی تھے. لہذا یہ درے کون سے ہیں اس کے سلسلے میں کہا گیا یہ کوہ قاف. آج بھی یہ پہاڑ بہت مشہور ہے. یہ کوہ قاف کے درے تھے، وہاں پہنچے حضرت ذوالقرنین. قالوا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، دیکھو یاجوج اور ماجوج یہ زمین پر بہت بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. قالوا، کہا ان لوگوں نے، اس بستی کے لوگوں نے، اس دیہات کے لوگوں نے اور جنگل میں بسنے والوں نے کہا کہ یاجوج و ماجوج یہ بہت فساد پیدا کر رہے ہیں، بہت بگاڑ. یہ یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ ان کے سلسلے میں بڑی بہت تحقیق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو جگہ کا تذکرہ فرمایا. یہاں ہے سورۃ الکہف میں، دوسرا مقام سورۃ الانبیاء میں ہے. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ جب
याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा और बिल्कुल हर ऊंची जगह से वो भाग भाग के आने लगेंगे, जमा हो जाएंगे, फिर उसके बाद क़यामत वाक़ होगी। याजूज और माजूज ये कहा गया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक फर्जंद थे हजरत याफस, उनकी नस्ल है ये, और ये वो नस्ल है, ये दो नस्लें हैं जो बहुत जमीन पर बिगाड़ पैदा करती रही हैं और बहुत फितने, फसाद, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक के फिर हजरत जुल्करनैन ने उनके लिए थोड़ा सा अदगम लगा दी, पाबंदियां लगा दी, तो ये नस्ल फिर दूसरे इंसानों के साथ धीरे धीरे तहलील होकर रह गई। हाँ, हदीस की रिवायतों में ये भी अल्फाज आते हैं कि वो अभी दीवार के पीछे पाए जाते हैं, दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं, दीवार टूट नहीं पाती और वो क़यामत से पहले निकलेंगे। इतना तो कुरान मजीद से साबित है कि ये क़यामत से पहले वो बिखर पड़ेंगे, हर तरफ वो नजर आने लगेंगे। लेकिन वो कौन है, कौन सी दो नस्लें हैं, उनके सिलसिले में कहना मुश्किल है। बस इतना पता चलता है कि रिवायतों को सामने रखने से कि बहुत ही फसाद, बिगाड़ को लेकर दो इंसानी नस्लें होंगी, दो कबीले होंगे, दो खानदान होंगे जो फैलते चले जाएंगे, बड़ी उनको फतह नसीब होगी और उनको गलबा नसीब होगा, और उसके बाद से फिर उनका मुकाबला होगा, और मुकाबला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी करेंगे। फिर उसके बाद वो शिकस्त होगी, वो खत्म हो जाएंगे, उनकी लाशों को ठिकाने लगाया जाएगा, फिर दुनिया में अमन और अमान बर्पा होगा, कायम होगा। उसके बाद फिर क़यामत आएगी। तो क़यामत की निशानियों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद चीजों का तज़किरा किया और उसमें रिवायतें बहुत ज्यादा है। सबसे ऑथेंटिक रिवायत वो मुस्लिम शरीफ की है, जिसका खुलासा ये है कि ये दो नस्लें हैं जो क़यामत से पहले बरामद होंगी, उनका ज़ुहूर भी होगा, उनका गलबा भी होगा, उनको कामयाबी भी मिलेगी, फिर उसके बाद उनकी शिकस्तों का सिलसिला शुरू होगा। यहाँ पे वो दो कौमें उस वक्त बिल्कुल आइडेंटिफाई थी, नुमाया थी। लिहाजा जुल्करनैन से बस्ती के लोगों ने कहा कि याजूज माजूज बहुत हमला करते हैं, बहुत सताते हैं, लूटते हैं, मुफसिदून फिल अर्द, जमीन पे बहुत बिगाड़ पैदा करते हैं। फहल नजअल लका खर्जा, तो क्या हम आपके लिए टैक्स न जमा कर दें, खिराज, खर्च वगैरह टैक्स को, या एक चंदे को इससे ताबीर कर लें कि हम कुछ पैसों का इंतजाम न कर दें। अला, इसलिए अंतजाला बैनना व बैनहुम सद्दा, कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे कि फिर वो हमला न कर सके। और जुल्करनैन क्या कहते हैं, मा मकन्नी फीही रब्बी खैरुन, परवरदिगार ने जो मुझे अता किया है, जो गलबा दिया है, जमीन पर कंट्रोल दिया, वो बहुत बेहतर है, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। पता क्या चला, बड़े जाहिद थे, पैसों से दिलचस्पी नहीं थी। क्या कहा आगे, ताईनूनी बिकुव्वतिन, हाँ मैन पावर की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, मजदूरों की जरूरत है, काम के लिए लोगों की जरूरत है, लिहाजा तुम मेरा सपोर्ट करो, मेरी मदद करो ताकत के जरिए से, काम के जरिए से। आजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक बहुत जबरदस्त मोटी ताजी दीवार बना दूंगा। रदमा कहते हैं लंबी चौड़ी ऊंची दीवार को। आतूनी ज़ुबरल हदीद, चुनाचे काम शुरू हुआ। जब काम शुरू हुआ तो कोहे काफ के दर्रे में दीवार बनाई गई जो तकरीबन 250 मील लंबी थी। 250 मील लंबी थी, 10 फीट ऊंची थी, बुलंद थी। और इसके लिए अब आप सोचिए, आप इतनी बड़ी दीवार उस जमाने में बनना, वो बड़ी चौड़ी हो, जिसमें सुराख न कर सके, तोड़ न सके, और उससे पार करके आ न सके, हमला न कर सके, तो उसके लिए बहुत मैन पावर की जरूरत थी। सब काम पर लग गए। जब लग गए, बुनियाद खोद दी गई, तो आतूनी ज़ुबरल हदीद, तो कहा लोहे की पैतरें लाओ, लोहे की प्लेट्स लाओ। लोहे की प्लेटों का भी इस्तेमाल किया। और उसके बाद से जब लोहा लाया गया, जमा किया गया, तो उसको आग में खूब भड़काया गया और अपनी जरूरत के मुताबिक उसको मुख्तलिफ साइजों और मुख्तलिफ शक्लों में ढाला गया। हत्ता इज़ा सावा बैन सदफैनी, यहाँ तक के दोनों पहाड़ों के दरमियान, सदफैनी दोनों पहाड़ों के किनारों के दरमियान तक जब पहुंच गए, कालन फुखू, खूब आग दहकाओ, खूब फूको आग में, ताकि अच्छी तरह लोहा उसमें तापा जा सके। हत्ता इज़ा जालहु नारा, जब खूब अच्छी आग दहक गई, आरातूनी उफरिग अलैहि क़ित्रा, कहा कि आप तांबा लाओ, तांबा भी पिघला लो। और तांबा पिघलाने के बाद से तांबे का भी इस्तेमाल किया उस दीवार में। तो महज वो ईंट और गच्छी की दीवार नहीं थी, उसमें लोहे का इस्तेमाल किया, उसमें तांबे का इस्तेमाल किया, बहुत मजबूत दीवार बना दी यहाँ से वहां तक कि अब उनके लिए
याजूज और माजूज जो दो बिगाड़ पैदा करने वाले खानदान कबीले थे, उनके लिए इन मासूमों पर हमला करना मुमकिन नहीं रह गया। बहुत जमाने तक ये दीवार रही। अपनी इस दीवार की बहुत सारी अलामतें हैं। ये आपको इस वक्त रशिया में ये सारी चीजें मिलेंगी। ये हिस्सा रशिया में पड़ता है। लिहाजा उनके लिए मुमकिन नहीं हो सका, किनके लिए, याजूज और माजूज के लिए, के फिर वो गलबा हासिल कर सके, फतह हासिल कर सके। और वमस्तताउ लहु नक़बा, यही नहीं बल्कि नक़ब करना, सुराख करना, दीवार में सुराख करके दूसरे पार पहुंच जाना, ये भी उनके लिए मुमकिन नहीं हो सका। इतनी जबरदस्त दीवार बना दी, उसमें तांबा है और उसमें लोहा है और उसमें हर किस्म की ऐसी मजबूती की चीजें हैं कि बिल्कुल वो दीवार के आगे मजबूर होकर रह गए। लिहाजा ये फितना फसाद धीरे धीरे खत्म हो गया। अब आप एक चीज देखेंगे, पहले में इस्ताऊ इरशाद फरमाया, दूसरे में वमस्तताऊ, दूसरे मौके पे इस्तताऊ का लफ्ज है, ता का इजाफा है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तवज्जो भी नहीं होती, लेकिन ये अल्लाह ताला का कलाम है। अगर आप गौर करें और तहकीक करें तो ऐसी हिकमत की मोतियां निकलती हैं कि आप हैरान रह जाएं। फमस्ताऊ के माने होते हैं कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश उनकी बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत ज्यादा उनको कामयाबी नहीं मिल सकी, बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं थी। इस्तताऊ के माने होते हैं, चूंकि अल्फाज की यहाँ कसरत है, इसके माने ये नक़ब करने की तो उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन फिर भी नाकाम रहे। नक़ब लगाने की, सुराख लगाकर उस पार निकल आए, इसके लिए तो उन्होंने बड़े जतन किए, उस जतन के बावजूद भी वो नाकाम रहे। यह है ताकि इजाफे की वजह से मानों में इजाफा का होना। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हर दो चीजों में वो नाकाम रहे, न गलबा हासिल कर सके, ना सुराख और नक़ब लगाकर वो दूसरी तरफ आ सके। अब इधर बेचारे वो देहात के लोग सीधे साधे, जो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर के भी आदी नहीं थे, जिन्हें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला यकादूना यफ़क़हूना क़ौला, बहुत बात भी नहीं समझ पाते थे, देहाती जिंदगी बसर करते थे, उनको एक आफियत मिल गई, सलामती मिल गई। ये ज़ुल्क़रनैन का आदल था। ज़ुल्क़रनैन का ज़ौक़ ये था कि उनसे उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, और उनका ईमान ये था कि उन्होंने कहा कि न सिर्फ ये कि जो ईमान से महरूम रहेंगे हम सजा देंगे, बल्कि आखिरत में भी उनको सजा मिलेगी। जो ईमान लाएंगे वो न सिर्फ ये कि आखिरत में नवाजे जाएंगे, दुनिया में भी हम उनके साथ नरमी करेंगे। तो ये वो सिफात थी उनकी, जिसकी वजह से वो बनी इसराइल के लिए नजात दहिंदा बने। और फिर उन्होंने फलस्तीन का सफर किया। फलस्तीन के सफर में उन्होंने बड़ी मदद की बनी इसराइल की, इसीलिए बनी इसराइल का तारीखी तौर पर उनसे बड़ा ताल्लुक था, और इसी ताल्लुक की वजह से वो जांचना चाहते थे इस रसूल नबी उम्मी के पास क्या मालूमात है। जब ये तस्कीरा आया तो उनकी बोलती बंद हो गई। बल्कि बाद रिवायतों के मुताबिक यहूदियों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पैर चूमने शुरू कर दिए कि वो आपके पास जो चीजें हैं, मालूमात है, उसके आगे तो हमारी अकल हैरान है। लेकिन अल्लाह ताला का अंदाज देखिए, तारीख का बिल्कुल नहीं है, तारीख नहीं बयान की गई। अल्लाह ताला का अंदाज हिदायत का है। तुमको तौफीक मिलनी चाहिए, नसीहत होनी चाहिए कि वो ईमान वाला बादशाह था, और अल्लाह ताला ने उनके ईमान की ऐसी लाज रखी, फतुहात भी दी, और उनका तज़किरा अपनी किताब में भी किया। उन्होंने कहा, देखो ये मेरा कोई कारनामा नहीं है, ये परवरदिगार की मेहरबानी है। उसने तुम पर रहम करम किया, उसने मुझे यहाँ भेजा, और उसने मेरे जरिए से दीवार बना दी। फैज़ा जा आवाज़ होगी जहां धक्का, अब ये दीवार पर खड़ा रहेगी यहाँ तक कि क़यामत आएगी, तो क़यामत आएगी तो हर चीज रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। वकान आवाज़ रब्बी हक़्क़ा, अब मेरे परवरदिगार का जो वादा है ना क़यामत का, वो बिल्कुल हकीकत है, वो होकर रहेगा। वतरकना बादहुम यौमइज़ यमूजु फ़ी बाद, और हमने याजूज और माजूज और उस पूरे कबीले और खानदान और उन लोगों को छोड़ दिया कि वो लोगों में मिलजुल जाएं। बादहुम यौमइज़ यमूजु फ़ी बाद, और फिर उसके बाद से क़यामत के दिन वो फिर मौज की तरह वो उठेंगे, जिसे मौज उठती है, यमूजु फ़ी बादिन। और फिर उसके बाद से नुफ़िख़ फ़ी सूर, सूर फूका जाएगा। और फिर उसके बाद तीसरा मरहला फ़जमअनाहुम जमा, तीसरा मरहला वो मैदान हशर का होगा। लाज़मी बात है, क़यामत की बड़ी तफसील है, और उस तफसील को यहाँ नहीं बयान किया जा सकता। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने खुद उसका बहुत तफसील से तज़किरा सूरत अज़्ज़ुमर में फरमाया है।
तो ज़ोहर तक अगर हम पहुंचे, अल्लाह ताला ने हयात दी, तो इंशाअल्लाह उस मौके पे क़यामत की पूरी तफसील आपके सामने आएगी। यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये सिलसिला चलता रहेगा और हमने छोड़ रखा है नस्ल इंसानी को एक दूसरे के साथ गुत्ता मिले जुले, यहाँ तक कि क़यामत का वक्त आएगा तो फिर वो कौम जिसको हम याजूज और माजूज कहते हैं वो मौजों की तरह उठेंगी और फिर उसके बाद से सूर फूका जाएगा, फिर उसके बाद से फजमानाहुम जमा, हम सारे लोगों को मैदान हशर में जमा करेंगे। वअरदना जहन्नम यौमइज़िन लिल काफिरीन, और चौथा मरहला ये होगा कि हम उन मुनकिरों के सामने जहन्नम को पेश कर देंगे जो इनकार करते हैं, कुफ्र करते हैं। एक प्रेजेंटेशन होगा पहले जहन्नम का, जो जहन्नम को पहले वो अपनी निगाहों से देखेंगे। और एक रिवायत के मुताबिक 70,000 फरिश्ते जहन्नम के एक हिस्से को जंजीरों से खींच के लेके आएंगे मैदान हशर में, ताकि काफिर देख ले जहन्नम किसको कहते हैं और आतिश जहन्नम किसको कहते हैं, दोज़ख की आग किसको कहते हैं। तो मुशाहिदा करवाया जाएगा, उसके लिए इरशाद फरमाया आरदना, और फिर आरदन इरशाद फरमाया, एक प्रेजेंटेशन होगा, एक पेशकशी होगी जहन्नम की, बाद में फिर जहन्नम भेजे जाएंगे। इन काफिरों के लिए कहा, काफिरों की सिफत क्या है? काफिरीन अल्लज़ीना कानत आयुनुहुम फी गिताइन अन ज़िक्री, जिनकी निगाहें मेरे जिक्र से ढक्कनों में बंद है, जिनकी निगाहें मेरी नसीहत और मेरे जिक्र के सामान को देखना ही नहीं चाहती। वो अपनी निगाहों से छोटी छोटी चीजों को देखते हैं और परखते हैं। वो अपनी निगाहों से बाजार में जाते हैं और 2 गज कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो अपनी पूरी निगाहों की तवानाई को उस पर लगा देते हैं और उसके रंग को देखते हैं और उसकी नरमी को देखते हैं, उसकी गर्मी को देखते हैं, उसके साइज को देखते हैं, उसकी बनावट को देखते हैं। उनका आलम यह है कि वो अपनी निगाहों की सलाहियत को इस दुनिया की मामूली चीजों के पीछे लगा देते हैं और उसके पीछे वो दूरबीन से देखते हैं और उस टेलीस्कोप से देखते हैं, तहकीक करते हैं, लेकिन कभी उन निगाहों से आखिरत की हकीकतों को नहीं देखना चाहते, कभी उन निगाहों से अल्लाह ताला की मारिफत को नहीं देखना चाहते। उनकी निगाहों का आलम यह है कि उनकी निगाहों में जब नोट पड़ती है तो जाली है, असली है, या फौरन पूरी आंखें फाड़ के उसको देखते हैं। लेकिन उनके हाथों में अकीदा आता है तो कभी वो नहीं सोचना चाहते ये अकीदा असली है कि नकली है, कभी गौर नहीं करना चाहते उस अकीदे के सिलसिले में धोखा देने वाला अकीदा तो नहीं दे रहा है। सच्चाई की तलाश में, हक की तलाश में, मारिफत खुदाबंदी के सिलसिले में उनकी निगाहें काम नहीं करती। वरना अगर ये निगाहें काम करी, अगर ये निगाहें अपनी ड्यूटी अंजाम दे तो दुनिया और कायनात और ये कायनात की बड़ी बड़ी निशानियां तो बहुत बड़ी निशानियां हैं, इसमें कोई शक नहीं अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी नारंगी की। मैं अर्ज करता हूँ कि दरख्त का एक पत्ता भी पूरी पूरी गवाही दे अल्लाह ताला की नारंगी और उसकी कुदरत की। इसीलिए तो सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने छोटी छोटी चीजों का भी तज़किरा फरमाया, बड़ी बड़ी चीजों के साथ। मुफस्सिरीन हैरान है कि कहाँ तो सूरज का तज़किरा, कहाँ पौधों का तज़किरा। यहाँ गौर कीजिए कि एक छोटी सी हकीकत पे गौर कीजिए कि एक बीज किसान उसको फैला रहा है, किसान के अंदर कोई तरतीब नहीं है किस रुख पर बीज को जमीन में डाला जाए, कोई तरतीब नहीं, वो बिखेर रहा है, उसका काम सिर्फ बिखेरना है और उसके ऊपर फिर ट्रैक्टर के जरिए से मरो मट्टी डाल दी गई। उसके बाद फिर परवरदिगार ने पानी बरसाया और पानी बरसने के बाद बीज से कोपलें निकल रही हैं। तो आप जरा सोचिए, हर कोपल आसमान की तरफ क्यों निकल रही है? 50% जमीन के अंदर भी तो चली जाती उल्टी। बीज के एक ही साइड से कोपल अगर निकलती है तो हर कोपल ऊपर की तरफ क्यों, जमीन को फाड़ कर धीरे धीरे बाहर क्यों निकल रही है? कम से कम 40% 50% तो जमीन के अंदर भी तो धंसती चली जाती, उल्टी तो भी चली जाती, उल्टी भी तो जाती, लेकिन नहीं होता क्यों? और परवरदिगार की निशानी है खालिकुल हब्बी वन्नवा। उसने कहा मैं हूँ बीजों को फाड़ने वाला, तुम नहीं फाड़ सकते बीज को। फरमाया मैं हूँ बीज से पौधा निकालने वाला, मैं हूँ उस पौधे को जान देकर खड़ा करने वाला, मैं हूँ उसको तकवीत देने वाला। और आप सोचिए हमारी इंडस्ट्री में कितनी चीजें बनती हैं तो फिर उसमें कितनी चीजें बेकार हो जाती है, निकाल कर फेंक दी जाती है। लेकिन परवरदिगार की शान ये है कि आम का नीम का दरख्त दोनों पड़ोस में है, नीम के दरख्त की कड़वाहट आम में क्यों नहीं आती और आम के दरख्त की मिठास नीम के फल में क्यों नहीं पाई जाती? क्या शान है, एक ही पानी ले रहे हैं, एक ही खुराक ले रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अल्लाह ताला ने दोनों के अंदर अपनी अपनी आइडेंटिटी रखी। तो इरशाद फरमाया छोटी सी चीज पे तुम गौर करो,
तब भी तुम्हारी निगाहें गवाही देगी कि परवरदिगार बहुत अजीम शान, कादिर मुतलक और बड़ी हिकमत वाला है। लेकिन जो अपनी निगाहों को सिर्फ और सिर्फ दुनिया की जिंदगी के लिए महदूद कर देता है और मारिफत खुदावंदी के लिए इन नेमतों को इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर इरशाद फरमाया कि जहन्नम उसका ठिकाना, वो जहन्नम जिसका पहले ही अपनी आंखों से मुशाहिदा मैदान हशर में कर लेगा। अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम, ये वो थे जिनकी निगाहें फी गिता, गिता कवर को कहते, कवर थी, ये सील लगी हुई थी, खुली हुई नहीं थी, गौर ही नहीं करती थी अल्लाह ताला की दीन के सिलसिले में, अन ज़िक्री, मेरी याद के सिलसिले में, मेरी मारिफत के सिलसिले में गौर नहीं करना चाहते थे, और दूसरी सारी चीजों के लिए निगाहें इस्तेमाल करते थे, और हलाल तो हलाल, हराम चीजों को देखा करते थे निगाहों से, गलत कामों के लिए निगाहों को इस्तेमाल करते थे, लेकिन कभी मेरे जिक्र के लिए, मेरे नसीहत के सामान के लिए, मेरी मारिफत के लिए निगाहों को काम में नहीं लाया। वो काम में लाए स्थितियों न समा, यही नहीं बल्कि ये सुनने पर भी कादिर नहीं थे, कभी इन्होंने सच को नहीं सुना, कभी सुनना नहीं चाहा। गाने सुनते थे, ये बेहयाई की बातें सुनते थे, और ये बातिल को सुनते थे, गलत चीजें सुनते थे, लेकिन कभी हक की बात होती तो पहलू तही करते निकल जाते, अवॉइड करते, सुनते नहीं थे, सच्चाई को सुनना भी नहीं चाहते थे। जब परवरदिगार ने इतनी अच्छी सलाहियत दी सुनने की, और मौला ने इतनी अच्छी सलाहियत दी देखने की, और ये दोनों सलाहियतें बंदा ले रहा है अपने रब से, अपने मालिक से, और इन दोनों सलाहियतों को रब के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करता, रब के दुश्मन के लिए इस्तेमाल करता है, तो फिर ये सलाहियतें जन्नत में जाने के काबिल है। जहन्नम में खुद लॉजिक क्या कहती है बताइए, लिहाजा इनको जहन्नम में झोंका जाएगा। जाओ अपनी आंखों के साथ, जाओ अपनी समात के साथ, सुनने की सलाहियत के साथ, जाओ अपनी जबान के साथ, जाओ अपने हाथ पैर के साथ, जहन्नम में हमेशा के लिए पड़े रहो। इसलिए कि इन्होंने ये समझ रखा है कि काम बनाने वाले कुछ और है, इन्होंने ये समझ रखा है कि इस दुनिया और इस कायनात के मामलात को अल्लाह ताला ने किसी और के सुपुर्द भी कर दिया। ये वो इनकी गलत फहमी है जो इनको धोखे में रखी हुई है और जो इनको बर्बाद कर रही है। इनके मुकाबले में ईमान, इस मादा परस्ती के मुकाबले में ईमान और रूहानियत और इंसान का ज़मीर और शऊर के ऊपर जीना, ये इंसान के लिए क्या नतीजे बरामद करता है, कैसी अल्लाह की नेमतों से बंदे को मालामाल करता है। इस चीज के तज़किरे पे अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ का इख्तिताम करना। इंशाअल्लाह उस रुकू की तिलावत और उस रुकू की तशरीह आइंदा इतवार आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।